Hello, everyone. Welcome to our series of Earthonomics, where we shall discuss various concepts and issues related to the field of economy. Now, today we are going to talk about the third tranche of Atmanirbhar Bharat. This third tranche is focused on agriculture and allied activities. Now, why is government focusing so much on agriculture and allied activities? Well, agriculture and allied activities are important for two particular reasons. Reason number one, all these migrant workers who are coming back from urban areas, they are going back to their villages, right? Now, if the village economy is not doing well, then these migrant workers would suffer back in their villages as well. Therefore, the government wants that all these migrant workers who are traveling back to their villages after facing so many hardships, they need to be given sustainable livelihoods. And for that, government needs to revive rural economy. And what better way to revive rural economy is than improving agriculture? All right. So government is focusing on agriculture because rural economy needs to get boosted. And the second important reason is that agriculture or rural areas, rural economy is important for the overall aggregate demand of the country. As we know that the lockdown is taking a toll on urban areas. Urban areas are facing a lot of problems, right? Now, if aggregate demand is falling because of lockdown on urban areas, then rural demand needs to pick up so that industry can benefit out of it. So government of India is focusing on agriculture because it wants to create sustainable livelihoods for migrant workers who are returning back to villages, and government of India wants to boost rural demand so that aggregate demand can be boosted, or rural demand can substitute urban demand so that overall aggregate demand does not suffer. All right. तो व्हाट शैल वी कवर इन दिस वीडियो? सबसे पहले तो हम देखेंगे मेजर अनाउंसमेंट्स इन द थर्ड ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत. गवर्नमेंट ने किन किन अनाउंसमेंट्स के थ्रू ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज को रिफॉर्म करने की बात करी है. देन रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस थर्ड ट्रांच का. देन रिफॉर्म्स इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो भी डिस्कस करेंगे. देन गवर्नमेंट ने ना इस अनाउंसमेंट में न्यू फ्रेमवर्क टू प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनाउंस करा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जाए ताकि रूरल इकोनॉमी में फार्मर्स को बेनिफिट हो. तो उसको डिकोड करेंगे. और फिर एंड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट की थर्ड ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत का. ऑलराइट, तो एक बार इसे फटाफट से नजर डाल लेते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, मेजर अनाउंसमेंट्स. नाउ, in the third tranche of Atmanirbhar Bharat, the finance minister presented 11 measures for agriculture and allied activities, right? 8 out of these 11 measures include liquidity measures totaling 1.5 lakh crore for various activities including infrastructure development. तो 11 में से 8 जो measures है ना, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा 1.5 लाख करोड़ फॉर बिल्डिंग एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो 8 में से 11 जो मेजर्स हैं वो तो हैं फाइनेंस या प्रोवाइडिंग मनी टू बिल्ड या इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ, जो बचे हुए 3 हैं वो एक्चुअली गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे हैं. तो 8 मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं पैसा, और जो बाकी 3 मेजर्स हैं ये गवर्नेंस सिस्टम को चेंज करने के लिए हैं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है. अब ये 3 जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं ये किन किन एरियाज को टच करते हैं? नंबर 1, रिप्लेसिंग द एपीएमसी रिजीम विद अ सेंट्रल लॉ. गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट्स है ना डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल मार्केट है वो काफी ज्यादा बायस्ड है इन फेवर ऑफ ट्रेडर्स और नुकसान पहुंचाती है फार्मर्स को, राइट? तो इसके लिए हम एक सेंट्रल लॉ लेके आ रहे हैं टू फैसिलिटेट बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड. एपीएमसी के रिजीम के अंडर इंटर स्टेट ट्रेड नहीं हो रहा है, इंट्रा स्टेट ट्रेड ही हो रहा है, और इंट्रा स्टेट ट्रेड में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. एंड अ फ्रेमवर्क फॉर ई ट्रेडिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस, मतलब कि फार्मर्स, मान लो पंजाब का फार्मर गुजरात में बेच सकता है ऑनलाइन अपना प्रोड्यूस. ठीक है. नंबर 2 क्या है? अमेंडमेंट्स इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट टू रिमूव 6 फूड स्टफ्स, सीरियल, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, अनियंस एंड पोटैटो. इन 6 कमोडिटीज को आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के एम्बिट से हटा दिया है. इसको भी देखेंगे. फिर हम एंड में देखेंगे लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनेबलिंग फार्मर्स टू एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. तो ये जो 3 गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं ये हैं एपीएमसी के ऊपर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए. ये तीनों के तीनों रिफॉर्म्स एम क्या करते हैं? ये एम करते हैं कि फार्मर को बेटर दाम मिले अपने प्रोड्यूस का. ऑलराइट. तो एक तरह से ना हम ये जो थर्ड ट्रांच है इसको मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं.
एक होगा एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस कर रहा है, दूसरा एपीएमसी रिजीम पे जो फोकस कर रहा है उसको हटाने की बात कर रहा है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को ठीक करने की बात कर रहा है, तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज और चौथा होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ऑलराइट, तो आत्मनिर्भर भारत जो थर्ड ट्रांच है इसको आप मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इन अनाउंसमेंट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेंडमेंट्स टू असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट की तरफ हम जाएंगे। ऑलराइट, नाउ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट इनैक्ट करा था पार्लियामेंट ने 1955 में। पार्लियामेंट का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह मानना था कि देयर आर सर्टन कमोडिटीज विच फॉर्म द बेसिक नीड्स ऑफ एवरीवन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना बेसिक नीड्स होती हैं सबकी, इसीलिए गवर्नमेंट का एम था कि ये सारी जो बेसिक कमोडिटीज है ना ये लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। नाउ गवर्नमेंट चाहती थी कि ये बेसिक कमोडिटीज जैसे कुछ मेडिसिन होगी, कुछ फूड आइटम्स होगी, ये अफोर्डेबल रहे पॉपुलेशन के लिए। इसीलिए इनको अफोर्डेबल रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने आप को कुछ पावर्स दी हैं ताकि वो इकोनॉमी को ऐसे रेगुलेट करें कि ये कमोडिटीज अफोर्डेबल रहें। उसी के लिए असेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया। The ECA 1955 controls the production, supply and distribution of and trade and commerce in certain goods such as vegetables, pulses, edible oils, sugar etc. which are treated as essential commodities. ये सारी चीजें अफोर्डेबल रहें, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन कंट्रोल देयर प्रोडक्शन, देयर सप्लाई, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑलराइट, तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। वेल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। It's an act of parliament which was established to ensure the delivery of certain commodities or products. It prevents obstruction of supply of these commodities through hoarding or black marketing which would affect the normal life of the people. ये जो essential commodities होती है ना, इनके जो traders होते हैं जनरली, ये कई बारी होर्डिंग कर लेते हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं। होर्डिंग से क्या होता है, आर्टिफिशियली आप सप्लाई कम कर देते हो कमोडिटी की, ठीक है। होर्डिंग करने से क्या होता है, आपने ना कम कर दी सप्लाई किसी भी कमोडिटी की, उससे क्या होगा, डिमांड तो हाई है बट आपने आर्टिफिशियली सप्लाई कट कर दी, इससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो यही होर्ड करने वाले ट्रेडर्स फिर हाई प्राइसेस पे अपना सामान बेचते हैं। अब हाई प्राइसेस का नुकसान कंज्यूमर्स को होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनैक्ट करा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिससे वो इन होर्डर्स को, इन ब्लैक मार्केटियर्स को रोक सके। ऑलराइट, नाउ पर्पस क्या है इसका? गवर्नमेंट यूजेस इट टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ होल होस्ट ऑफ कमोडिटीज इट डिक्लेयर्स एसेंशियल in order to make them available to consumers at fair price. तो गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी को एसेंशियल डिक्लेयर कर सकती है और एसेंशियल डिक्लेयर करने के बाद उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेदर इट्स प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, सबको रेगुलेट कर सकती है ताकि वो फेयर प्राइसेस पे कंज्यूमर्स को मिल जाए। The government can also fix the maximum retail price of any packaged product that it declares an essential commodity. मान लो पैकेट वाला जो नमक होता है, अब वो essential commodity गवर्नमेंट ना डिक्लेयर कर देती है कि salt is an essential commodity। तो जो नमक होएगा ना, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देगी, कैप लगा देगी कि इससे ऊपर कोई नमक नहीं, इससे ज्यादा प्राइस पे कोई नमक नहीं बेच सकता। राइट, ये भी कर सकती है थ्रू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब लगता किन किन चीजों पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आइटम्स क्या क्या इंक्लूडेड है? ड्रग्स इंक्लूडेड हैं, फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माइंड यू, नॉट स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इट कैन इंक्लूड न्यू कमोडिटीज एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस एंड टेक देम ऑफ द लिस्ट वंस द सिचुएशन इंप्रूव्स। नाउ थोड़ी और चीजें जान लेते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में। राइट, हाउ डज द गवर्नमेंट एनफोर्स दिस एक्ट? If center finds that a certain commodity is in short supply and its price is spiking, बढ़ रहा है, then it can notify stock holding limits on it for a specified period. Stock holding limits मतलब कि जितने भी traders हैं उस commodity के, वो एक लिमिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, वो एक लिमिट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि ये ट्रेडर्स ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, ज्यादा स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं, इसी वजह से आर्टिफिशियल सप्लाई कम हो रही है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन्हें ऑर्डर दे सकती है कि आप इस लिमिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, और अगर आपके पास इस लिमिट से ज्यादा है तो उसे आप मार्केट में उतार दो, मार्केट में बेचना शुरू कर दो, ताकि सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड वहीं की वहीं है, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखना, व्हेन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज राइजेस, द रेगुलेटर कैन इंपोज स्टॉक लिमिट्स, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स and mandate compulsory purchases. ठीक है, states act on this notification, government of India center notification निकालता है और state governments act on this notification to specify limits and take steps to ensure that these are adhered to. All right,
Anybody trading or dealing in the commodity, be it wholesaler, retailer, or even importers, are prevented from stockpiling it beyond a certain quantity. Wholesaler हो, retailer हो, कोई trader हो, कोई importer हो, एक limit से ज़्यादा store नहीं कर पाएगा. A state can choose not to impose any restrictions, but when it does, traders have to immediately sell excess stocks held beyond the mandated quantity. तो अगर आपके पास ज्यादा पड़ा है सामान एक लिमिट से ज्यादा, तो आपको मार्केट में उतारना पड़ेगा. This improves supply and bring prices down. अच्छा, state agencies can conduct raids to get everyone to toe the line and the errant are punished. Alright? Now ये जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, इसने काफी ज्यादा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को क्रिटिसाइज करा है. इसने कहा है कि जो पर्पस था ना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, वो पूरा नहीं हो रहा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके उल्टा ही चल रहा है. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था ताकि एसेंशियल कमोडिटीज अफोर्डेबल हो, बट वही एसेंशियल कमोडिटीज आज अफोर्डेबल नहीं है और उनमें प्राइस वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. मे बी इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट कि मे बी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं और उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इकोनॉमिक सर्वे तो ये कहता था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिपील ही कर दो क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस को इंपीड कर रहा है. तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की कुछ 5 प्रॉब्लम्स बताई थी मेजर, वो देख लेते हैं. सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इट डिस्करेजेस जेन्युइन स्टोरेज विच इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ड्यूरिंग लीन सीजन. अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक लिमिट्स लगा देती है, तो कई जो ट्रेडर्स है ना, उन्होंने कई बार जेन्युइन बहुत ज्यादा स्टोरेज करनी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कई जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्टोरेज इसलिए करते हैं ताकि, जैसे फॉर एग्जांपल अनियन की स्टोरेज कर रहे हैं, तो कई ट्रेडर्स ना अनियन की ज्यादा स्टोरेज इसलिए करते हैं ताकि जब अनियंस मिलने बंद हो जाएंगे ना, तो वो अपने इसी स्टॉक को बेच सकेंगे. तो जब लीन सीजन चल रहा होता है ना, जब अनियन प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, तब वो स्टॉक बेच के कंटिन्यूस रख सकते हैं फ्लो को. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक लिमिट्स लगा देती है और इन्हीं स्टॉक लिमिट्स की वजह से वो ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते. तो जब लीन सीजन आता है, जब अनियन प्रोडक्शन कम है, उस टाइम इन ट्रेडर्स के पास भी नहीं होता अनियन, और इसी वजह से एकदम से जेन्युइनली सप्लाई कम हो जाती है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो इट डिस्करेजेस जेन्युइन स्टोरेज ऑल्सो. ठीक है. देन नेक्स्ट, इट इंपीड्स इन्वेस्टमेंट इन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी. आपको पता है हमारे कंट्री में ना कोल्ड स्टोरेजेस ज्यादा है ही नहीं. हमारे कंट्री में स्टोरेज फैसिलिटीज इतनी है ही नहीं. इसी वजह से हमारे कंट्री में पेरिशेबल्स यानी कि हॉर्टिकल्चरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो क्रॉप्स है ना, वो क्रॉप्स कह रहा हूं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज ही नहीं है. नाउ स्टोरेज फैसिलिटीज जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, उसमें ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. अब कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टमेंट तभी करेगा ना जब उसे विश्वास है कि वो ज्यादा स्टोर कर सकता है. बट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसे विश्वास ये दिलाती नहीं है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तो लिमिट लगा देती है स्टोरेज पे. तो वो जो ट्रेडर है वो स्टोरेज पे इन्वेस्ट ही क्यों करेगा जब उसे पता है कि वो ज्यादा स्टोर ही नहीं कर सकता. इसीलिए इंडिया में स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से फूड वेस्टेज बहुत होती है. देन नेक्स्ट, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन फर्म्स एंड स्पेक्युलेटिव होल्डर्स. अब जो ये स्टॉक लिमिट्स लगाई जाती है ना, वो स्टॉक लिमिट सबके लिए होती हैं. जो जानबूझ के होर्डिंग कर रहा है, जानबूझ के आर्टिफिशियली सप्लाई कम कर रहा है, उस पर भी लिमिट लगती है. और जो जेन्युइनली स्टोर कर रहा है, जो जेन्युइनली स्टोर कर रहा है सामान लीन सीजन के से बचने के लिए, उस पे भी सेम लिमिट है. गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ इक्विवेलेंट एक्शन ले रही है, जबकि जेन्युइन फर्म्स को तो ऑपरेट करने देना चाहिए, स्पेक्युलेटिव होल्डर्स को रोकना चाहिए. बट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन दोनों में फर्क नहीं करता. स्पेक्युलेटिव होल्डर्स के साथ साथ जेन्युइन फर्म्स भी पिस जाती हैं. देन नेक्स्ट, इट distorts markets by increasing uncertainty and reduces entry of big private players. Now, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जितने भी बड़े बड़े फूड प्रोसेसर हैं, जैसे लेज है कंपनी, चिप्स की कंपनी, अब उसे पोटैटो बहुत ज्यादा चाहिए ना, वो पोटैटो के लिए क्या करेगा, बहुत सारे ना स्टोरेज हाउसेस बना देगा, कोल्ड स्टोरेजेस बना देगा, क्योंकि उसे ज्यादा बल्क में पोटैटो चाहिए. बट उसको भी ना डर लगता है ईसीए से, क्योंकि कब गवर्नमेंट जागे और गवर्नमेंट ना ईसीए के तहत पोटैटो की स्टॉकिंग पे लिमिट लगा दे. कुछ पता ही नहीं ना, अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा. फ्यूचर में कब गवर्नमेंट इतनी लिमिट कर दे, कब गवर्नमेंट लिमिट बढ़ा दे, कब गवर्नमेंट कहते इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते. इसलिए जितने भी ये बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं फूड प्रोसेसिंग के, ये भी इंडिया में इतना इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कब गवर्नमेंट ईसीए के तहत किस कमोडिटी पे क्या लिमिट लगा दे. तो इससे मार्केट अनसर्टेनिटी बढ़ती है और मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाती है, और मार्केट फोर्सेस ना होने की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री नहीं हो पाती है. एंड लास्ट इज लिटिल डेटरेंस एज कन्विक्शन रेट इज क्वाइट लो. अच्छा, इसका मेन काम क्या है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, कि ताकि जो लोग
स्पेक्युलेटिव होर्डिंग कर रहे हैं ना, जो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए। बट क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत ना गलत लोगों को भी ज्यादा पकड़ा नहीं जा पा रहा है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जिन लोगों पे रेड भी पड़ती है ना, वो कोर्ट में अपने आप को जाके बचा लेते हैं। तो ईसीए आया इसलिए था ताकि स्पेक्युलेटिव होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया जाए, स्पेक्युलेटिव होल्डर्स को रोका जाए। स्पेक्युलेटिव होल्डर्स पकड़े नहीं जा रहे हैं, जेन्युइन फर्म्स साथ साथ पिस रही हैं। इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को या तो आपको रेडिकली अमेंड करना पड़ेगा या रिपील करना पड़ेगा, ये इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था। और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थर्ड ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत में क्या कहा है कि हम कुछ 6 कमोडिटीज को ईसीए से बाहर निकाल रहे हैं, सीरियल्स, पल्सेस वगैरह, और हम सोच रहे हैं कि इसमें रेडिकल अमेंडमेंट भी की जाए। राइट? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि ये जो 6 कमोडिटीज को हम ईसीए से बाहर निकाल रहे हैं, हाँ, नेचुरल कैलामिटी या इमरजेंसी की सिचुएशन में इसको हम ईसीए में वापस डाल सकते हैं, बट नॉर्मल टाइम्स में हम इसे ईसीए से बाहर निकाल रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, अब हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला पोर्शन तो हो गया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे जो थर्ड ट्रांच का हिस्सा है, एंड दैट सेकंड पार्ट इज सेंट्रल लॉ टू रिप्लेस एपीएमसी। नाउ एपीएमसी डील करता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग से। तो एपीएमसी के अंडर हमारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक बारी उसकी तरफ नजर डालते हैं, और फिर हम देखेंगे कि ये जो सेंट्रल लॉ की बात चल रही है, ये कैसे बेटरमेंट होगी, ये कैसे बेटर होगा एपीएमसी रेजीम से। नाउ प्रॉब्लम्स विद द एपीएमसी रेजीम। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्टेट इनटू मल्टीपल मार्केट एरियाज। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एग्रीकल्चरल जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, इसीलिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे जो पूरी पावर है ना लॉ बनाने की, वो स्टेट लेजिस्लेचर की होती है ना। हर स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना एक एक्ट बनाया हुआ है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसे हम एपीएमसी एक्ट कहते हैं। नाउ अंडर दिस एपीएमसी एक्ट या अंडर दिस एपीएमसी रिजीम, जो स्टेट एरिया होता है ना, जो एक स्टेट का एरिया होता है, वो फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन से डील करता है। वो जो मार्केटिंग है ना पूरी, वो फ्रैगमेंटेड है। जितनी भी एग्रीकल्चरल मार्केट है पूरी स्टेट में, वो फ्रैगमेंटेड है। अब जब सप्लाई चेन आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की फ्रैगमेंटेड होती है, तो मिडलमैन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर बीच में मिडलमैन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और जितने ज्यादा मिडलमैन होंगे उतने ज्यादा कमीशन होगा। राइट? और जितना ज्यादा कमीशन होगा तो कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा और फार्मर को कम से कम प्राइस देना पड़ेगा। राइट? तो बेटर पता क्या होगा कि मिडलमैन कम से कम हो, ताकि ऐसा भी हो सके कि फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सके, तो फार्मर को भी हाई प्राइस मिल जाता है और कंज्यूमर को भी कम प्राइस पे करना पड़ता है। राइट? तो एपीएमसी के अंडर फ्रैगमेंटेशन है बहुत ज्यादा सप्लाई चेन की। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? पुअर प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर्स। आपको पता है एपीएमसी एक्ट के अंडर ना जितनी भी सिटीज हैं, जितने भी अर्बन एरियाज हैं, जितने भी एरियाज हैं एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है ना। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी फार्मर है वो सिर्फ उसी मार्केटिंग यार्ड को ही बेच सकता है, सामान कहीं और नहीं बेच सकता, और अपनी स्टेट के बाहर तो सामान बेच ही नहीं सकता। राइट? इसीलिए फार्मर्स को पुअर प्राइस डिस्कवरी होती है। फार्मर्स को वही दाम, वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो उस एरिया की मंडी उसे दे रही होती है। फार्मर कहीं और बेच ही नहीं सकता। राइट? Then third, too many middlemen in a fragmented supply chain। इस वजह से क्या होता है, फार्मर को कम प्राइस मिलता है, कंज्यूमर को ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है, फार्मर का कम प्राइस और कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस, ये जो डिफरेंस है, ये सारा आता है कमीशंस ऑफ द मिडलमैन की वजह से। राइट? एंड लास्ट, लिटिल स्कोप फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपको पता है कई जो स्टेट्स हैं जिनमें एपीएमसी के लॉज बने हुए हैं, उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है, वो प्रोहिबिटेड है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोहिबिटेड है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ऑलराइट? नाउ सेंटर ने इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। उनमें से 2 मेजर इनिशिएटिव्स थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक मॉडल एपीएलएम एक्ट निकाला था। मॉडल एपीएलएम एक्ट पता क्या था? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में या सेंट्रल लिस्ट में नहीं है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडल एपीएलएम एक्ट निकाला। ये मॉडल एपीएलएम एक्ट पता क्या होगा? ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ना गाइड होएगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर चाहें तो वो अपने एपीएमसी एक्ट को अमेंड करके यही सेंटर वाला मॉडल एक्ट फॉलो कर सकते हैं। राइट? नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मॉडल एपीएलएम एक्ट निकाला तो सही, बट बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसे फॉलो ही नहीं करा, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हुई। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया था ताकि ये प्रॉब्लम्स जो हैं जो एपीएमसी में वो रिजॉल्व हो जाएं। ई नैम इनिशिएटिव, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, ठीक है, बट ई नैम इनिशिएटिव, मॉडल एपीएलएम एक्ट वो सक्सेस नहीं कर पाया, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना उसे होना चाहिए था। ठीक है, दे हैव नॉट मेट विद मच सक्सेस।
इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब बात करी है, निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये अनाउंसमेंट्स करी हैं। निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि देयर विल बी अ सेंट्रल लॉ. A central law has been proposed to allow farmers barrier-free access to interstate trade. Currently, under APMC Act, farmers सिर्फ अपने मार्केटिंग यार्ड में ही बेच सकते हैं, इंटरस्टेट ट्रेड नहीं कर सकते. बट ये जो नया सेंट्रल लॉ लेके आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंटरस्टेट ट्रेड भी अलाउ करेगा फार्मर्स को. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इस पे लॉ बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तो लिस्ट में ही नहीं है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, नॉट यूनियन लिस्ट. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आई ये लॉ बनाने की? यही क्वेश्चन पूछा गया था निर्मला सीतारमण जी ने जी से, और उन्होंने जवाब क्या दिया है? दो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज इन द स्टेट लिस्ट, इंटरस्टेट ट्रेड फॉल्स इन द यूनियन लिस्ट. तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, बट इंटरस्टेट ट्रेड जो है ना वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, और इंटरस्टेट ट्रेड इन एनी कमोडिटी शैल बी रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इसीलिए इस इंटरस्टेट ट्रेड के तहत वो ये नया लॉ लेके आ रहे हैं. दिस विल इंप्रूव प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर्स. ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज पे. आत्मनिर्भर भारत का जो थर्ड ट्रांच है उसका थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. Now, government has announced that it will create a legal framework for contract farming. Now, before understanding that, you need to know what contract farming is. All right. So let's take a look at contract farming. Now, imagine there is this farmer. All right. और इस फार्मर को डिसीजन लेना है कि ये कौन सी क्रॉप उगाए. Now, फार्मर जो होगा ये वो वही क्रॉप उगाएगा जिसमें इसे सबसे ज्यादा अच्छा प्राइस मिले. बट फ्यूचर में प्राइसेस क्या होंगे वो तो इसे पता नहीं, क्योंकि प्राइस प्रिडिक्टेबिलिटी तो है नहीं. फ्यूचर में किसी भी क्रॉप का कुछ भी प्राइस हो सकता है. तो ये फार्मर ना डायलेमा में फंसा हुआ है. व्हाट प्राइस कैन आई गेट फॉर माई प्रोड्यूस, इसे आइडिया नहीं है. ठीक है, और इसीलिए ये डिसीजन भी नहीं ले सकता. ये बस अंदाजा लगाता है कि कौन सी चीज का प्राइस ज्यादा होगा 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, और उसी हिसाब से डिसीजन ले लेता है ना. जिस फार्मर को पता नहीं कि फ्यूचर में किस क्रॉप का क्या प्राइस होगा, उसके सामने दो ऑप्शंस होते हैं. एक ऑप्शन है कि वो क्रॉप्स उगाए जिन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी डिक्लेयर करती है, और उन क्रॉप्स को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेच दे. ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, फार्मर्स को प्राइस प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देने के लिए ना बहुत पहले ही डिक्लेयर कर देती है कुछ क्रॉप्स पे एमएसपी. अब फार्मर्स को पता होता है कि उनकी जो क्रॉप्स होंगी, जो वो क्रॉप्स उगा रहे हैं, उन पे उन्हें क्या प्राइस मिलेगा. इसलिए फार्मर्स ना बिल्कुल निश्चिंत होकर वो क्रॉप्स उगाते हैं, और जब उनका हार्वेस्ट हो जाता है सब सारी क्रॉप्स, तो वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेच देते हैं. बट इस सिस्टम में ना प्रॉब्लम है एक. वो प्रॉब्लम क्या है? इस सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि एमएसपी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे नहीं डिक्लेयर करती. तो जो फार्मर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा रहे हैं और बहुत सारी क्रॉप्स उगा रहे हैं, उनके पास एमएसपी की फैसिलिटी है नहीं. प्लस जो लोग सीरियल्स भी उगा रहे हैं जिन पे एमएसपी डिक्लेयर होता है, वो फार्मर्स जो वो क्रॉप्स उगा रहे हैं जिन पे एमएसपी डिक्लेयर होता है, उनके पास भी एक प्रॉब्लम है. देयर आर नॉट इनफ प्रोक्योरमेंट सेंटर्स इन इंडिया. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इतने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ही नहीं है. इसलिए वो फार्मर जो व्हीट और राइस उगा रहे हैं जिन पे एमएसपी डिक्लेयर होता है, उनके पास भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटी नहीं है. बहुत कम प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं. इसलिए कुछ फार्मर्स जिनको प्राइस प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, वो दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं. और वो दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की. नाउ लेट्स सपोज एक ना फूड प्रोसेसिंग कंपनी है. लेट्स सपोज चिप्स बनाने की कोई बहुत बड़ी कंपनी है. लेट्स सपोज लेज है. ठीक है, नाउ लेज को ना एक ही क्वालिटी के पोटैटो चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके डिफरेंट पैकेट्स में डिफरेंट फ्लेवर आ रहा हो पोटैटोस का, चिप्स का. राइट, तो उसे एक ही क्वालिटी के पोटैटो चाहिए. प्लस उसे ना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी कुछ मीट करने हैं. राइट, अब वो जो फ्रीटो ले कंपनी है ना, वो फार्मर्स के पास जाती है, किसी फार्मर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे 6 महीने बाद ना इतने पोटैटोस चाहिए. नाउ वो कंपनी, फ्रीटोले कंपनी और ये जो फार्मर है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक अग्रीमेंट कर लेते हैं. उस अग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है? उस अग्रीमेंट में लिखा जाता है कि 6 महीने बाद फ्रीटोले कंपनी को कितने पोटैटोस बेचे जाएंगे, कितनी अमाउंट, उनकी क्या क्वालिटी होगी, उनकी क्वालिटी का भी स्टैंडर्ड बताया जाता है. ये नहीं कि खराब आलू बना के बेच दिया, नहीं. उनकी क्वालिटी बताई जाएगी, उनका प्राइस बताया जाएगा और डेट बताई जाएगी जिस डेट पे वो बेचा जाएगा. ठीक है, नाउ जब ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है, इस पे फार्मर साइन कर देता है और ये कंपनी साइन कर देती है. ना इसका फायदा फार्मर को क्या है? फार्मर को ये फायदा है कि एक तो उसे प्रिडिक्टेबिलिटी मिल जाती है प्राइस की. अब 6 महीने बाद पोटैटो का प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, फार्मर को एश्योरेंस मिल गई कि ये जो मेरा बायर है, ये इसी प्राइस पे बाय करेगा जिस प्राइस पे इसने मेरे को वादा करा है.
दूसरा, ये जो कंपनी है इसको क्या फायदा होता है? कंपनी को ये फायदा होता है कि इसे एक ही क्वालिटी के पोटेटोज मिल जाते हैं, राइट? तो एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या प्री डिसाइडेड होता है? प्राइस प्री डिसाइडेड होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस प्री डिसाइडेड होता है, और डेट ऑफ सेल प्री डिसाइडेड होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में एक तो होता है फार्मर जो कि होगा सेलर, और एक होता है बायर ऑफ दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बायर कोई भी हो सकता है, फूड प्रोसेसर हो सकता है, एक बहुत बड़ा रिटेलर हो सकता है, जैसे इजी डे वगैरह है, रिलायंस फ्रेश है, ये लोग भी खरीद सकते हैं। देन कोई एक्सपोर्टर हो सकता है, देन कोई एग्रीगेटर यानी कि बहुत बड़ा ट्रेडर हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इस फार्मर के साथ, और इस फार्मर को इसके फायदे ही फायदे हैं। जो प्राइस प्रिडिक्टेबिलिटी से एमएसपी के थ्रू मिल रही थी, अब वो इसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलेगी। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? एक बार ये देख लेते हैं। एक तो प्राइस प्रिडिक्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स है, देन बेटर प्राइस रियलाइजेशन है, देन फ्यू स्कोप फॉर मिडलमैन। मिडलमैन है ही नहीं, जो बायर है और जो फार्मर है ये डायरेक्टली एक दूसरे से मतलब एक दूसरे में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वरना क्या होता था, ये जो फूड प्रोसेसर होते थे ना, इन्हें बहुत सारे आड़तियों के पास, मिडलमैन के पास जाना पड़ता था खरीदने, ठीक है? तो फार्मर से इन फूड प्रोसेसर तक जो सामान पहुंचता था ना, वो कई मिडलमैन से होके गुजरता था। अब इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? प्लस ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देगा, क्योंकि यही जो लेज की कंपनी है ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, ठीक है? तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बूस्ट मिलता है, फूड प्रोसेसिंग जितने भी यूनिट्स हैं उन्हें बहुत फायदा होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज रिस्क मिटिगेशन फॉर फार्मर्स। फार्मर के रिस्क कम हो जाता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है फ्यूचर में उन्हें क्या दाम मिलेगा। देन अश्योर्ड रिटर्न्स मिलती हैं, प्लस जो बायर्स हैं, जो फूड प्रोसेसर हैं, उन्हें एक ही क्वालिटी का मिल जाता है सामान, क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है। ऑलराइट, तो ये थे एडवांटेजेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। चलिए अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस थर्ड ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और वो फोर्थ पार्ट क्या है? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या अनाउंसमेंट्स करी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? नंबर 1, NABARD will facilitate a ₹1 lakh crore finance for funding agricultural infrastructure projects at farm gate and aggregation points। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया में ना स्टोरेज फैसिलिटीज इतनी नहीं है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है कि वो नाबार्ड के थ्रू 1 लाख करोड़ का फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की जा सके, कोल्ड स्टोरेजेस बहुत सारे बनाए जा सके, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज बहुत सारी बनाई जा सके। अच्छा, ये जो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा ना नाबार्ड 1 लाख करोड़ का, ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा डिफरेंट एजेंट्स को। वो डिफरेंट एजेंट्स क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उन्हें फाइनेंस मिलेगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा, स्टार्टअप्स को मिलेगा। तो ये 1 लाख करोड़ का फाइनेंस मिलेगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है? ताकि ये जनरली ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके मेंबर्स कौन होंगे? फार्मर्स ही होंगे ना। तो फार्मर्स को डायरेक्टली आप फाइनेंस दे रहे हो ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सके। ऑलराइट, देन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते हो फूड प्रोसेसिंग के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ के अलावा 10,000 करोड़ और साइड पे रखे हैं फॉर अ स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है ना, उनके लिए 10,000 करोड़ की स्कीम निकाली है। नाउ द स्कीम विल हेल्प नियरली 2 लाख MFEs to achieve technological upgradation to attain FSSAI Food Safety and Standards Authority of India food standards, build brands and marketing। इसका मतलब क्या है? जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस है ना, उनका सामान ज्यादा बिक नहीं पाता है शहरों में। क्यों? एक तो ये ना जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो FSSAI डिक्लेयर करता है वो मीट नहीं करते, इनकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं होती, इनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कीम के तहत इन्हें ये मौका दे रही है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर पाएं, ये सारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करें, ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, ताकि इनका भी सामान बिके। अब जैसा कि आप जानते हो, प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत अनाउंस करा था तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, यू शुड बी मोर वोकल फॉर लोकल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करके लोकल एंटरप्राइजेस को ही सपोर्ट कर रही है। तो ये एक तरह से वोकल फॉर लोकल की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। ये जो छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, इन्हीं को सपोर्ट करके हम लोकल ब्रांड्स डेवलप कर पाएंगे। सो सच यूनिट्स वुड प्रमोट वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच विद अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो जिस एरिया की जो खासियत होती है ना, जैसे बिहार में मखाना फेमस है, मैंगो यूपी में फेमस है, उसी एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को इकट्ठे ग्रो करेंगे। ठीक है, इकट्ठे ग्रो करवाएंगे। दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। ऑलराइट, अच्छा, जैसा कि हमने बात करी है, ये जो थर्ड ट्रांच है ना, ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए। अब अलाइड एक्टिविटीज क्या होती हैं? अलाइड एक्टिविटीज होती हैं आपकी पोल्ट्री, एनिमल रेयरिंग, फिशरीज वगैरह वगैरह। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं ना,
यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना फिशरी सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, राइट? तो फिशरी सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, infrastructure for fishery sector. Now, Finance Minister announced allocation of 20,000 crore for fishermen through this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. This will include 11,000 crore for activities in marine, inland and aquaculture. और 9,000 crore will be spent on developing fishing harbors, cold chains, markets वगैरह. अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इस स्कीम का फायदा पता है क्या है? नंबर 1, additional fish production of 70 lakh tons over 5 years. Then it will generate employment to over 55 lakh persons and doubling of exports to rupees 1 lakh crore. नाउ एक बारी फटाफट से देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, बिकॉज ये हमें करना इसलिए जरूरी है ताकि आप जान सको कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है? नंबर 1, इट विल प्रोवाइड मोर मार्केट लिंकेजेस टू फार्मर्स. फार्मर्स को ज्यादा मार्केट लिंकेजेस मिलेंगे, वरना फार्मर्स के सामने अभी या तो मंडी में सामान बेचने का ऑप्शन होता है या एमएसपी पे गवर्नमेंट को बेचने का होता है. जैसे ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो फ्रीटोले कंपनी को, रिलायंस फ्रेश को, इजी डे को भी बेच पाएंगे, तो बेटर मार्केट लिंकेजेस मिलेंगे. देन नंबर 2, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी. और रूरल एम्प्लॉयमेंट और प्रॉस्पेरिटी जब आएगी तो रूरल डिमांड बढ़ेगी. तो रूरल डिमांड जब बढ़ेगी तो ये जो अर्बन डिमांड गिरती जा रही है ना, उसे रिप्लेस हम अच्छे से कर पाएंगे और हमारी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तेजी से नहीं गिरेगी. प्लस रूरल डिमांड बढ़ने की वजह से साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट विल गिव अ बूस्ट टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. ऑलराइट, अब इन समरी अगर हम इन कंक्लूजन देखें तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये सारी अनाउंसमेंट्स करी थी फाइनेंस मिनिस्टर ने विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. ठीक है, तो थर्ड ट्रांच में कुछ समरी में अगर हम देखें तो ये अनाउंसमेंट्स की गई थी. ऑलराइट, आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके एक बारी गो थ्रू दीज अनाउंसमेंट्स. सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज. आई होप आपको ये पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत का थर्ड ट्रांच समझ आया हो. इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, देन प्लीज राइट अबाउट दैट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ ऑन इकोनॉमी.